सेंट सोल्जर टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम पहुंच चुके हैं सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज में। यहां पर आज ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट एनएसएस और एनसीसी की स्टूडेंट की तरफ से एक पेड़ मां का नाम एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें उपस्थित रहेंगे सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन डॉक्टर अनिल चोपड़ा जी, सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मनहर अरोड़ा जी, और आज का जो लेक्चर होगा वो होगा कि चीफ गेस्ट मिस्टर कर्नल MS सचदेव जी की तरफ से। आइए हम भी चलते हैं, देखते हैं सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज का आज का एक खास प्रोग्राम।
itself. Introduction, his uniform speak by itself. But formally it is my duty to tell you all about his achievement that he has made during his duty. Colonel M.S. Sachdev is a second generation officer who was the academic cadet adjutant and commissioned first in the order of merit into the mechanized infantry regiment in 1994. The officer has a vast military experience both in India and overseas. The officer commanded his parent unit 13 McNair in the desert sector. He has had the proud privilege of having served in the JNK in the counter-insurgency grid and in the Ladakh Siachen Glacier. The officer has been an instructor in the School of Armed Warfare and is a permanent instructor on the panel of Center for the United Nations Peacekeeping since 2007. The officer has served as a military observer in United Nations mission in Democratic Republic of Congo. He has also been a team leader of Indian Army mobile training team in Cambodia after the command of this unit. The officer has done his senior observer course from the Australia Defence Force Warfare Centre, Williamstown, and was later observed there as an instructor. The officer had the privilege to be the exercise director of the first insured multinational exercise in which 27 countries participated and observed from almost 89 countries attended the exercise. The officer is also a recipient of the 3 commendation stars for the distinguished services including the United Nations commendations for his contribution in Congo. DRC Colonel Mahinder Singh Sachdev is a postgraduate in Homeland Security and Disaster Management from the Department of Defence and National Security Studies, Punjab University, and is presently pursuing his PhD in Conflict Prevention from the Peace Operation Training Institution, New York, USA. Colonel M.S. Sachdev is presently posted as a CO 2 Punjab 1st Battalion, NCC Jalandhar. In his tenure in the present unit, he has been instrumental in the selection of 2 cadets for the Kartavya Path Rajpath, 2 cadets for TSC, 1 cadet got an A grading in advanced mountaineering course and was later to selected participated in Mount Telu NCC Expedition 2023. 2 cadets from the unit cleared the CDS exams and was waiting for their final marks. The endeavor of the officer is to ensure that maximum cadets get an opportunity to showcase their ability and get motivated to join the armed forces. Now, I have the honor to inviting our respected Director Sir Dr. S.C. Sharma ji to deliver a formal welcome to our guests. It is my proud privilege to welcome the Chief Guest of the day, respected Colonel M.S. Sachdev, and while welcoming and the introduction given by Lecturer Neha, it's quite motivating not only for the students, it is also for the faculty as well. So I am privileged that way, that having invited the Chief Guest of the day, Colonel Sachdev, for the reason that he has marked the mark so far as the defense services are concerned, having achieved so many successes, many stars, and even many prestigious awards. And not only in India, but the 4 or 5 countries and even in the UN. So that means it is quite motivating.
I feel it is motivating for not only the students but also the faculty and we people, the management, that he is not only a person of defense forces with full dedication and devotion, but also an academic par excellence. So that means it was quite surprising that even presently he is pursuing PhD from American University. So it's quite motivating, sir. So we do need that it will motivate our faculty and motivate the students to a larger extent. That means when we join the army, it is not the end of the day that we are not to pursue the academics. The academics and the defense services go hand in hand. So quite obviously we do appreciate that they are complementary also, complementary and supplementary as we call. So that means the academics and the achievements, they contribute to the better performance of defense services, and the services, the defense services, they also contribute to the supplement the academics. I really do welcome you, sir, to this function. Above all, these qualifications, but I must appreciate and largely appreciate that sir has many qualities of attendance. You will never find that he is a colonel and an army officer. It is not so social, so humble, and whenever we make a request, he never said no. And furthermore, I must express my gratitude also to Sir for the reason that it was Colonel Dhoom, that is you, who granted us this NCC program. And it is under his stewardship that we have got more recognition. It may be in respect of this Lieutenant Neha or in the participants, our cadets. So they got more recognition, they get better selection. I just said that whenever there is a function of the inter-colleges, they are given some assignment. Our cadets, they are also recognized, they are also given some duties to pass. So basically that is a good training and it is motivation for our cadets and the officer as well. So that means they are to perform better. So I also take this opportunity to welcome our chairman, sir, Dr. Anil Chopra ji. Sir, when we say Dr. Anil Chopra, he was awarded the World Power Degree from Indian University of Calcutta. We find that it is not only the recognition in the country or in the state or what the chairman is getting. He has been recognized his contribution to the academics. It is only for that reason. Whatever this group under his leadership has contributed to the cause of education. So that we get the recognized by the Canadian University also, and they awarded this doctorate degree to Dr. Anil Chopra. I welcome you, sir. He is the head of the family, and that festive we take it for granted and we request. So it was day before yesterday, I made a request to Mr. sir that Colonel Sadev will be coming to us. Sir, will you take some time unhesitatingly? He please said that it's okay, I must be coming. So I welcome you, sir. It is always motivating for us. It is also guiding for us whenever you join us, and we motivate the students and the faculty to do much better. Law College has made some contributions so far as treating the judges is concerned. We have contributed to producing good lawyers and the last year it was not only 6 judges, it was 6 judges. Then it was in the police service also, other departments and the officers. Then in the long run, so I proudly say that our 3 students are there, not 3 students of the family, but they are working. Personality whose words always leave us a lasting impression. We are eager to hear his thoughts on this occasion. Please welcome Colonel M.S. Sachdev to address the gathering. Honorable Chairman Dr. Anil Chopra, Managing Director Dr. Arora, and Director Dr. Sharma, our ANO Lieutenant Neha,
esteemed faculty and my dear cadets and students. I am indeed thankful कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया। इस हिंदी पंजाबी इंग्लिश ओके या अंग्रेजी में बात करें या हिंदी में? हाँ बच्चे ठीक। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है? तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने मेरे को ये मौका दिया आप सबके बीच में आने का। और नेहा मैडम ने इतनी लंबी कहानी सुना दी जो एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं थी। और यहाँ पे आने से पहले आप लोगों के बीच में मैं चेयरमैन साहब, एमडी साहब और डायरेक्टर साहब के साथ में बैठा हुआ था, चाय पी रहा था। तो उन्होंने कुछ बातें करी जो मुझे लगा कि सिर्फ ऐसे लोग बात कर सकते हैं जो बहुत कंसर्न है कि जो आज का जो यूथ है वो एक ऐसे मार्ग पे चले जिसका शायद सपना इन लोग के माँ बाप ने देखा था। वो आप में से बोलोगे कि वक्त बदल गया, लोग बदल गए, टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ नहीं बदलती। हमारे लिए भी थे हमारे ज़माने में, लेकिन उसके लिए नज़रिया बदल गया है एंड मे बी दी अप्रोच टुवर्ड्स इट हैज़ चेंज, बट द पाथ दैट वी हैव टू टेक फॉर अचीविंग दोज पॉइंट्स रिमेन्स द सेम। सो आई विल बिगिन विद दैट, बट ये मेरी एक शर्त है आप सबसे कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए और थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आपके जो शरीर पे बहुत सारा पसीना आ रहा है, ठीक है? क्योंकि पसीना सिर्फ मेहनतकश लोगों के चेहरे पे आता है, ठीक है? तो जो मेहनत करते हैं उनको पसीने की कीमत मालूम होती है। और ये सोच लो कि गर्मी आपको आज फ्री में ये पसीना दे रही है और आपको मेहनतकश बनने के लिए उत्साहित कर रही है। ओके, सो कैन वी हैव द फर्स्ट स्लाइड? ये स्लाइड जो है, ओके, क्या आप इन शख्स को जानते हैं? कोई भी बच्चा? हाँ बेटा, वो जो सरदार जी बैठे हैं काली पगड़ी में सफ़ेद कमीज में और जो काफ़ी सीरियसली पढ़ रहे हैं, बेटा खड़े हो, अपना नाम बताओ और पढ़ो। सॉरी, यू आर नॉट एबल टू सी? ओके, एनीवन इन द फर्स्ट बेंच? ओके, क्या समझते हो आप इससे? कि जब तक किसी कुछ भी करके नहीं देखते वो सामने इम्पॉसिबल ही लगता है। कोई भी काम सब करके दिखना चाहता है तो मेक इट पॉसिबल। वेरी गुड, बैठो। अभी नेल्सन मंडेला की जो कहानी है वो ज़िंदगी में एक ऐसी कहानी है कि ये 46 ईयर्स की उम्र में जेल चले गए थे प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में है और 70 साल की उम्र में, यानी कि 24 साल तक ये जेल में थे। ओके, एंड इन दिस 24 years there were so many things he taught to the world, and the day he was released, Africa became apartheid free. You know what is apartheid? जहाँ पे काले और गोरे का फर्क किया जाता है, और मुझे लगता है शायद हिंदुस्तान में भी ये हम रंग का फर्क करते हैं। हमने अपने आप को जातियों में बांटा हुआ है, उच्च कोटि, नीच कोटि, शूद्र, ब्राह्मण, ये वो करके। तो इसी से मेरे को एक कहानी याद आती है कि 1947 में जब हमारे को आज़ादी मिली थी तो एक जात होती थी जिसको हम बोलते थे शूद्र। जानते हैं आप? तो लोग उनको शूद्र क्यों बोलते थे? कोई भी बच्चा भी बोलो जो भी दिल में आता। हाँ बेटा, किस लिए शूद्र बोलते थे इनको? सर क्योंकि उन्हें दास समझा जाता था, सबसे नीची जात का, क्योंकि क्या उन्हें सबसे जो नीची जाति के काम थे वो दिए जाते थे। ओके, क्या होते हैं नीची जात के काम? उन्हें नौकर समझा जाता है, जैसे घरों में काम करना, झाड़ू पोछा लगाना और टॉयलेट साफ करना, ये सारे काम। ओके, ये बुरे काम होते हैं? नो सर, कोई भी काम आज के जनरेशन में या पहले कभी भी बुरा नहीं है और ना कभी होगा। आपका क्या नाम है बेटा? उषा। वेरी गुड। तो बहुत ही अच्छी बात बोली इन्होंने कि 1947 में हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर जाति थी उसको हम शूद्र बोलते थे, क्योंकि वो ऐसे काम करते थे जो हम लोगों को, बाकियों को करने में शर्म आती थी। ठीक है,
लेकिन महात्मा गांधी जी ने देखा कि हमारा जो नज़रिया है उनके बरखिलाफ वो बहुत हीन है. So what he did was he started calling them Harijan. Okay, what is a Harijan? Harijan, या बेटा. Okay, so Harijan means जो भगवान का बंदा है, ठीक है, God's man, यही बोलते हैं ना हरिजन को. तो तब हम हरिजन को ऐसे करके देखते थे, लेकिन आज 2025 पे आते आते वो शूद्र जो था जिसको हम बोलते थे ये शूद्र है, आज हम हरिजन को भी क्या बोलते हैं कि ये हरिजन है. ऐसे ही बोलते हैं ना. वाई? बिकॉज नेचर ऑफ जॉब चेंज नहीं हुआ और ना ही हमारा सोचने का तरीका चेंज हुआ. नाम बदल गया, लेकिन हमारा जो सोचने का तरीका था वो सिर्फ इतना उसमें ट्रांजिशन आया कि शूद्र की जगह अभी वो हरिजन बन गया. तो जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे, जैसे वो उषा ने बोला, आप में से ही बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं हिंदुस्तान से और वहाँ जाकर जैनिटर का काम करते हैं. और अगर मैं आपको बताऊं कि जैनिटर का काम वही होता है जो यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कि चूड़े चमार करते हैं, ठीक है. सो टिल द टाइम यू डू नॉट चेंज योर थॉट प्रोसेस, यू विल नेवर बी एबल टू चेंज योरसेल्फ. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. So now when we come to that it always seems impossible until it is done, is because this man had the guts, the gumption, that when he came out of prison, which was a 6 feet by 8 feet by 7 feet cage in the prison in which he was in Pretoria, when he came out of that prison, there were prison guards who used to torture him, who used to defecate on him, who used to call him names. And when he came out and one of the news reporters asked him that, don't you hate these prison guards? You know what he said? He said, where was the time to hate? तो ये एक मकसद के साथ अंदर गए थे कि अपार्थाइड खत्म करनी है और काले और गोरे का जो फर्क है उसको मिटाना है. तो अगर एक इंसान ये कर सकता है तो आप तो इनसे बहुत यंग है. 46 साल की उम्र में और 70 साल की उम्र में बाहर आने के बाद में साउथ अफ्रीका एक नेशन बना जो कि इंसिडेंटली आज अफ्रीका का सबसे बढ़िया नेशन माना जाता है. समझ रहे हैं? तो ये मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है. अगर आप ठान लेंगे तो आप कर सकते हैं. सिर्फ ज़रूरत है आपकी सोच की. Can we have the next slide? Okay. Now for that we need certain virtues. उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जब आप किसी आर्मी ऑफिसर को बुलाते हो या बोलते हो बात करने के लिए, तो लोग समझते हैं सिर्फ ये इसलिए बात करते हैं कि सारे के सारे लोगों को हम फौज में लाना चाहते हैं. एनसीसी का मकसद आपको फौज में लाना नहीं है. एनसीसी का मतलब है आपको एक बढ़िया हिंदुस्तानी बनाना. मैं ये नहीं कहता कि ये जो मेरे साथ में जो फौजी आए हैं ये आपसे बढ़िया हिंदुस्तानी है. ये बढ़िया हिंदुस्तानी सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आम हिंदुस्तानी से ये फौजी बने और जो फौज की ट्रेनिंग है उसने इनके अंदर एक ऐसा जज्बा भरा कि शायद वो जज्बा देश हित में ज़्यादा आज की डेट में कारगर साबित होगा. कैसे? जैसे कि हम देखते हैं कि 15 अगस्त जो कि अभी आने वाली है, हम झंडे चढ़ाते हैं, लेकिन 16 अगस्त से लेकर अगली 15 अगस्त तक वही फटे हुए झंडे हमारे सड़कों पे लहराते रहते हैं. एक आम हिंदुस्तानी को झंडे की कीमत पता नहीं है, लेकिन जिस किसी के घर में यहाँ पे कोई शहीद होकर घर में आया है उसको झंडे की कीमत मालूम है, क्योंकि उनका भाई, बेटा, फादर या आज की डेट में सिस्टर और मदर भी, क्योंकि वो भी फौज में उतनी हिस्सेदारी कर रही हैं जितने की लड़के कर रहे हैं, उसमें लिपट कर आते हैं और उसके बाद में वो झंडे को फोल्ड करके अपने संदूक में रखते हैं. तो जब आपको उस चीज़ की कीमत पता चलेगी तो तब आपको पता चलेगा कि सही हिंदुस्तानी होने का मकसद क्या है.
कोई आपको नहीं रोकता कि आप अपनी ट्विटर पे वॉरफेयर करें या रील्स बनाएं या यूट्यूब वीडियोस बनाएं. दीज आर गुड थिंग्स टू डू. एट योर एज यू आर एक्सपेरिमेंटिंग, यू आर डूइंग दीज थिंग्स बिकॉज योर एज is defined by all these activities. But somewhere down the line, please help an old woman cross the road. कभी किसी मददगार के लिए रुको, शायद अगली बारी आपकी भी हो सकती है. ठीक है. और इसके लिए जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आप अपने आप में ही अंदर एक लीडर बनना शुरू हो जाएंगे. वो कैसे? क्योंकि जिसके अंदर कंपैशन है, और कंपैशन तभी आता है जब आपके अंदर नॉलेज हो. आई वॉज सीइंग योर चेयरमैन एंड आई एम टोल्ड दैट ही हैज 50-60 इंस्टीट्यूट्स एंड ऑलमोस्ट 50,000 चिल्ड्रन स्टडिंग. व्हेन आई इंटरेक्टेड विद हिम फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट मैंने बात करी है सर से, और मुझे इतने हम्बल और डाउन टू अर्थ लगे कि मतलब कहीं पे भी वो कोई, आप ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे तो सादगी है. कहीं पे भी कोई ब्रांड नहीं डिफाइन कर रही, क्योंकि जब आप खुद ब्रांड बनते हैं ना तो आपको एक नाइकी का स्विच नहीं चाहिए आपको डिफाइन करने के लिए. आजकल हम अपने शरीर पे आर्टिफिशियल मीन्स से अपने आप को डिफाइन करते हैं. हम वो टैटू बनाते हैं जो शायद हमारे को 4 दिन के बाद खुद को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इंसान बदली होते रहते हैं. तो एक मारुति कार पे कितने लोगों ने स्टिकर देखे हैं? मारुति कार पे लिखा होता है ना, डैडीज कार, माई बेस्ट कार लगा होता है, बहुत सारे स्टिकर होते हैं. किसी ने मर्सिडीज पे कोई स्टिकर देखा आज तक? किसी ने देखा हो तो हाथ खड़ा करो. तो यू आर ऑल मर्सिडीज. If you aim yourself to be Mercedes, you will never define yourself with something which you will not relate to after 3 days. ठीक है. लेकिन बड़े बनने के लिए नीचे से शुरू करना पड़ता है. जो यहां पे पहुंचे हैं वो आपकी जगह पे थे, सिर्फ इनके हित में इनका एक्सपीरियंस है, और आप सबके अंदर वो ताकत है यहां तक पहुंचने की. और एक छोटा कदम एक दिन में आपको आपकी मंजिल तक और उससे आगे भी ले जाएगा. नेक्स्ट प्लीज. ये पर्सनैलिटी को तो आप जानते होंगे, है ना. हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब मैं कश्मीर में था तो वहाँ पे जनरल सेइंग विच इज़ देयर इज़ कि एक पर्टिकुलर कौम जो है वो बहुत ख़राब है. ठीक है. और हम इंसान नहीं बनाया है कि भाई ये ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं, फलाने ऐसे होते हैं. अच्छे बुरे लोग हमारी कौम में भी हैं. ठीक है. हमारे बीच में चोर डकैत सब हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट में. और ये एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं, और अगर आप देखिए इनके व्यूज़, मैं कहता हूँ शायद हमारे लिविंग टाइम में ऐसा प्रेसिडेंट आया नहीं होगा, बिकॉज हिज थॉट वाज सो फोकस्ड टूवर्ड्स अ नेशनलिस्ट इंडिया. ये साइंटिस्ट थे, और साइंटिस्ट बनना हमारे जैसों की काबिलियत में नहीं है. बहुत सेरेब्रल मैटर चाहिए, बहुत हाई IQ चाहिए, और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है. ख़ासतौर पे यहाँ पे आपके प्रोफेसर्स हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं. ठीक है. तो उस लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. टू बी एन एकेडमिशियन एंड टू इम्पार्ट द सेम थिंग टू समबडी टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क. तो व्हेन ही सेज समथिंग लाइक दिस कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक वन, तो इसका मतलब क्या है आप समझते हैं? All those Gucci Armanis who are sitting here, can anybody tell me? बेटा खड़े हो. ठीक है. अगर आप किसी चीज के लिए खड़े नहीं होगे तो हर चीज के लिए गिर जाओगे. हाँ उषा, ओके. आगे आजा बेटा, फटाफट आगे आजा. या कोई और आगे बैठे हुए हैं यहाँ पे जो बोलना चाहते हैं,
या आज तक नहीं बोला और अपनी आवाज़ स्टेज से सुनना चाहते हैं? आ जाओ। आजा बेटा। देखो एक बच्ची आ रही है बार बार। इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट वन लाइक अ सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। मतलब कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर जितना चमकना पड़ेगा उतनी रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। प्लीज़ गिव हर अ बिग हैंड। ठीक है, पहले इसलिए कि ये वहाँ से चल के आई यहाँ तक, क्योंकि ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। ओके, मेहनत अगर नहीं करोगे, मैं आपको यकीन के साथ मैं बता रहा हूँ, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लोग, वो यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचे हैं। एक सिर्फ शायद अनंत अंबानी हमारे हिंदुस्तान में है जिसको वो ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, लेकिन बाकी सबको मेहनत करने की ज़रूरत है और कभी ज़ाया नहीं जाती है। ठीक है, व्हेन यू सी पीपल लाइक माई सुबेदार मेजर हेयर, कैन यू टेल हिज एज? कोई बता सकते हैं इनकी उम्र कितनी होगी? इनके बच्चे आपके जितने बड़े हैं और आज भी ये 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे दौड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये तभी हो सकता है जब आप मेहनत करोगे। और जब मेहनत करके, मैं बता रहा था डॉक्टर साहब को कि जब मेहनत करके वो एक रोटी भी अगर आप ढाबे से खाते हो ना तो बहुत स्वाद लगती है और आपको लगता है कि ये मेरी कमाई की। तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। वाइल बिकमिंग अ टिकटॉक स्टार और सोशल इन्फ्लुएंसर ऑल्सो रिक्वायर्स मेहनत। ठीक है, टू गेट दैट प्लेटिनम, वो क्या होता है उसको यूट्यूब का, वो तो सबको पता होगा, है ना? उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट। ओके, एक और क्लिक करना। ये बाएं दाएं वालों को तो जानते होगे आप। हाँ बेटा, सुपरमैन और सुपर वुमन, है ना? और ये बीच में कौन है? और इनको भी जानते हो? ओके, वेरी गुड। तो जिंदगी में ना एक हीरो होना बहुत जरूरी है। वो क्यों? कोई बता सकता है? बताओ, कुछ तो बताओ जो मन में आ रहा है आपके। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਖੜੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੁੱਛ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ थोड़ा जोर से। आगे आ जाओ। हाँ बेटा बताओ। आपकी आवाज सबको सुनाई देनी चाहिए। विजन के लिए। और कोई है कि हीरो होना जिंदगी में क्यों जरूरी है? जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले उसके हीरो होते हैं माँ बाप, लेकिन थोड़े साल के बाद में वो हट जाते हैं क्योंकि वो उनको टोकते रहते हैं कि आप मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते हो, है ना? फिर आपके हीरो चेंज होते हैं। तो हर एक उम्र में अलग हीरो होता है, लेकिन हीरो होना जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। वो किस लिए ज़रूरी है मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। ए जेड़े बच्चे ने पुट्ठी टोपी पाई है, जस्टिन बीवर, या why is it important to have a hero? आजा इत्थे ही आजा। देखो अभी चेहरे पे रौनक आई है ना। एक बार हंस दो सारे के सारे। नॉट ऑन हिम, ऑन मी। चलो स्माइल, एक बार जोर से हंसो। ये तो कोई बात नहीं हुई। कोई देखो कोई आपको अनॉमली लग रही हो उस पर हंसो। चलो जोर से। चलो कमान कमान। हाँ बेटा बताओ, हीरो होना क्यों जरूरी है? सर अपने लिए। सर अपने लिए। हाँ अपने लिए सर। कैसे अपने लिए? सर जैसे हम किसी को देखते हैं तो उसी जैसे बनने जैसे सोचते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम शर्मा। यहाँ पे बोलो। शिवम शर्मा। ओके, अभी सबने सुना क्या बोला शिवम ने? तो बेटा जोर से बोलो एक बार।
जैसे हम किसी को देखते हैं कि वो हीरो है तो फिर हमें अपने में लगता है कि वो मतलब उसी जैसा बनने जैसे ख्याल आते हैं। वेरी वेरी गुड, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। गुड, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास में सब कुछ है लेकिन एक चीज़ नहीं है, वो क्या है? एक्सपीरियंस, है ना? उम्र के साथ वो भी आएगा, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो उस मुकाम तक पहुंच गया है, अगर आप उसको देखोगे तो आपके अंदर एक ऐसी भावना पैदा होगी कि शायद मैं भी ऐसा बनूं, और फिर आप उस तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, प्लीज हैव अ नाइस स्माइल। आई वांट टू सी यू स्माइलिंग, ऑल ऑफ यू, कम ऑन। इतना स्ट्रेस है आज की दुनिया में कि बच्चे 1 मिनट भी नहीं हंस सकते, है ना? ऐसे हंसो जैसे अकेले बैठे हो, कोई नहीं देख रहा, जोर जोर से। सी, इतनी मार पड़ी है आपको आज की जिंदगी से कि आप हंसना भूल गए हो। जामुन तो तोड़ना ही नहीं जानते होगे, जामुन का पेड़ भी नहीं पहचानते होगे, है ना? पेड़ तो कभी चढ़े नहीं होगे, है ना? फसलें देखकर बता नहीं पाओगे कि ये कौन सी है। और जंगल में अगर अकेला छोड़ दोगे तो जब तक रील चलेगी तब तक आप जिंदा रहोगे, और जहां आपकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई वहाँ आपकी भी हो जाएगी। हाँ कि ना? तो थोड़ा हंसना सीखो, ठीक है? जिंदगी को दूसरे नजरिए से देखो। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हीरोज बिकॉज देन यू कैन बिकम वन ऑफ देम। ओके, लेकिन पीछे चलो बेटा, पीछे चलो, पीछे चलो। ओके, लेकिन ये हीरोज के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से हीरोज ऐसे भी होते हैं जो काम तो बहुत बड़ा करते हैं लेकिन उनको हम जानते नहीं हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी बस यहीं रुकना, नहीं वापस चलो। बस कोई मेरे को बता सकता है ये दोनों कौन है? कोई भी? क्योंकि अमूमन तौर पे मैं जहां पे जाता हूं वहां पे लोग बोलते हैं कि सर हम अकेले क्या कर सकते हैं। एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, ठीक है? तो तभी मैं आपको ये हीरोज के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि अमूमन तौर पे हम इनको जानते नहीं हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वन मोर क्लिक। तो जो आप जेंटलमैन देख रहे हैं किश्ती के ऊपर, इनका नाम है जादव पेयांग, और जो मैडम को आप देख रहे हैं इनका नाम है बीना राव। जो जादव पेयांग हैं असम के जोराट के एक इलाके में, जहाँ पे कोई फसल नहीं थी, जहाँ पे कोई पेड़ नहीं था, जहाँ पे वहाँ के जो नेचुरल फ्लोरा और फौना थे वो मर चुके थे। फ्लोरा और फौना के साथ में जो सांप, बिच्छू वगैरह वगैरह जो भी थे वो ख़त्म हो चुके थे, लुप्त हो चुके थे। इस अकेले इंसान ने वहाँ पे 1360 एकड़ में एक थिक डेंस फॉरेस्ट बनाया और एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम को रिवाइव किया, और जो वहाँ के नेचुरल प्लांट्स, एनिमल्स, क्रीचर्स, रेप्टाइल्स, वो सब वहाँ पे वापस आने लगे। तो ये एक आदमी की ताकत है। और जो ये अध्यापिका हैं बीना राव, ये गुजरात से हैं, सूरत से। इन्होंने अपने ऊपर बीड़ा लिया कि 5000 बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो स्लम्स में हैं, जिनके पेरेंट्स या तो ऐसे काम करते हैं जो मॉरली और सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जो अदर कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं, या बहुत सारे ऐसे सोसाइटी के लोग कि जिनको लोग देखना नहीं चाहते और अपने साथ में एसोसिएट नहीं करना चाहते, वैसे 5000 बच्चों को ये पढ़ाती हैं। तो मेरा पर्पस ये है बताने के लिए कि आप सब हीरो हैं। जिस फुर्ती से आप तैयार होकर बुलेट को स्टार्ट करते हो मॉडल टाउन जाने के लिए, उसी फुर्ती से आप जिंदगी में कोई भी चीज को अचीव कर सकते हो। ऑल दैट यू नीड इज द इंक्लिनेशन एंड द विल टू डू इट। नेक्स्ट प्लीज। ओके, डू यू नो हु दिस लेडी इज? Have you heard about इंदिरा नूई? कोई बच्चा जानता है इंदिरा नूई कौन है?
हाँ जी, बिल्कुल, आपकी मैडम ने बता दिया तो आपको जहमत नहीं करनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या बोला, टेक अ स्टैंड, बी नोन फॉर योर करेज एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, सही है गलत है? ओके, अभी मैं आप में से पूछना चाहूँगा कि कितने लोग बोलते हैं कि आपका कॉलेज अच्छा चल रहा है? हाथ खड़ा करो। ओके, अभी यहाँ पे कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि आपका कॉलेज ठीक नहीं चल रहा है? हिंदुस्तानी हैं हम, हमारे हाथ खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, कभी कभी सच बोलना पड़ता है और कभी कभी सच सुनाना पड़ता है। हैव आई प्रूव्ड माई पॉइंट? ओके, आपको मैं एक बात बताता हूँ। मेरी यूनिट जो है वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट है और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो कारगिल की लड़ाई के दौरान जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में काफ़ी गोलाबारी हो रही थी, लेकिन जो नीचे रेगिस्तान के बड़े बड़े टिब्बे थे वहाँ पे आर्मर्ड कोर और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री अपनी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ में हम तैनात थे। एमुनिशन लोडेड था, FOL स्टॉक था, टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हुए थे और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम एक्टिवेटेड थे और सिर्फ एक इशारे का इंतज़ार था कि जब पीछे से हमारे को, हमारी भाषा में बोलते हैं, व्हेन द बलून गोज अप, कि मतलब जब इशारा होगा तो सब जंग के लिए तैयार होंगे। तो शायद 21 मई की बात है 1999, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो वहाँ पे BSF की 3 गाड़ियाँ गश्त कर रही थी। BSF नॉर्मली आगे होती है और पीछे फौज होती है पीस टाइम के दौरान, और लड़ाई के दौरान BSF को पीछे ले आते हैं और फौज आगे चली जाती है। तो वहाँ पे एक जगह है फिरोजपुर के पास में, गुरु हर सहाय जलालाबाद और उसके इर्द गिर्द, जहाँ पे पाकिस्तानीज़ ने 3 BSF की गाड़ियों पे फायर खोल दिया और 3 BSF की गाड़ियों पे फायर खोलने के बाद में वो तीनों गाड़ियों में कम से कम 16 या 17 BSF के जवान शहीद हो गए। अभी क्वेश्चन ये था कि हम रिटेलिएट करते हैं या नहीं करते हैं, या करेंगे या नहीं करेंगे, वाज द बिगर क्वेश्चन। तो लेकिन उसी जगह पे एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट थी, उसके एक कैप्टन साहब थे। उन्होंने देखा कि 16-17 BSF के जवान शहीद हो गए जो कि हमारे देश के हैं। तो उन्होंने 4 BMP लगाई और जो बॉर्डर फेंस के पार जो BSF की एक बॉर्डर आउटपोस्ट थी उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया गोलाबारी के साथ में। अब कितने लोग वहाँ मरे या नहीं मरे हमारे को आइडिया नहीं है, क्योंकि जो हमारा दुश्मन था उसने ये बात रिपोर्ट नहीं करी। उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि ये तो लड़ाई लग जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, फलाना हो जाता। एक कैप्टन साहब ने डिसीजन लिया था, शायद जो उनकी पावर के ऊपर की बात थी, तो उसका मतलब ये था कि काफ़ी लोगों की नौकरी जा सकती थी, काफ़ी लोगों का कोर्ट मार्शल हो सकता था। तो उसी बीच में हमारे बीच में से ही हीरो निकल के आते हैं। तो कैप्टन साहब ने तो जो किया वो बहुत बहादुरी का काम था, लेकिन उससे भी ज़्यादा बहादुरी का काम किया उनके कमांडिंग ऑफिसर ने, जिसने बोला कि इस चीज़ का हुक्म मैंने दिया था, जबकि उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि जब फौज अपनी जान दांव पे लगाती है तो वो इस भरोसे के साथ लगाती है कि जो मेरे पीछे बैठा है, अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ या मरता हूँ तो वो मुझे वो इज़्ज़त वो देगा जिसका मैं हकदार हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आपको ज़िंदगी में स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि कल को आपकी बारी आ सकती है। मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल इसलिए दिया था अच्छे और बुरे का, क्योंकि हर एक जगह पे मेरा भी इंस्टीट्यूट होगा या मेरी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वहाँ कुछ अच्छा होगा और कुछ बुरा होगा। लेकिन अगर यही सवाल मैं शायद आपसे पीछे पूछता या
आपसे अनोनिमसली पूछता तो आप लोग शायद मुझे जवाब देते कि नहीं समोसे अच्छे नहीं मिलते, वो कैंटीन बहुत दूर है, या हमारे को कॉपियाँ नहीं मिलती, या हमारी फैकल्टी उतनी अच्छी नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. But the point is that stand you have to take in front of everybody. Because life is watching you every second. अगर आपको कोई नहीं देख रहा तो आप खुद अपने आप को देख रहे हैं. Next click please. I think we are going slightly high on time. I just have another 5-10 minutes. बेटा next click करना. पीछे वाला. हाँ. ये सैम बहादुर फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ जो अमृतसर में पैदा हुए थे, पारसी हैं और हमारी फौज के एक बेहतरीन जनरल साहब माने जाते हैं, क्योंकि 1971 में जो बांग्लादेश बना था वो इनकी बनिस्बत बना था. ठीक है, बहुत खूबियाँ थी इनमें. और ये बोलते हैं कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड. और ये बात आज मैं आपको प्रूव करता हूँ, क्योंकि इस दिन में मेरी बात हो रही थी आपके चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था कि फ़ौज की ट्रेनिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, एटलीस्ट आई कैन से फॉर माई सेल्फ, आई कैन नॉट से फॉर अदर पीपल. शायद मैं जब आपकी उम्र में था तो बच्ची ने तो इतनी हिम्मत करी यहाँ पे आकर बोलने की, मैं शायद यहाँ तक भी नहीं आ पाता. ठीक है, बट दिस आर्मी, when I went and joined the army, there was a time that even when we used to run 1 kilometer, we used to feel afraid, you know, that whether we will be able to run or not. Incidentally, I have also done a windsurfing expedition from Mumbai to Ratnagiri on a 2-man windsurfing yacht. Okay, and that meant that at times we had to swim 16 to 20 kilometers in high seas. ठीक है, तो ये फौज ही करा सकती है आपसे कि 40 किलो का वजन आप अपने पीठ पे डाल के 40 किलोमीटर आप बिना शिकन के दौड़ रहे हैं, और सिर्फ इसलिए दौड़ रहे हैं कि जब वो ख़त्म होगी तो वहाँ पे आपको एक गर्म कप कोको का मिलेगा. वो छोटी छोटी खुशियाँ आपके अंदर एक ऐसी तब्दीली लाती हैं, और जब आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप फिजिकली स्ट्रांग भी बन जाएंगे. क्योंकि ये जो ह्यूमन बॉडी है ये तो इतनी बढ़िया चीज़ है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता. ये कितने भी रोबोट बना लें, आपके जैसा रोबोट नहीं बना सकते हैं. ठीक है, तभी जब वो बोला होता है ना, आइडेंटिफाई दी स्ट्रीट लाइट्स, जब आप वो देखते नहीं हो वो आता है टू प्रूव दैट यू आर नॉट अ रोबोट. डू यू सी इट? टिक द बॉक्सेस. नो रोबोट कैन डू इट, ओनली यू कैन डू इट. तो इसका इस्तेमाल करना सीखो सही दिशा में. मोबाइल आपको ऊपर भी मिलेगा, डोंट वरी. पता चल गया है कि हेवन में भी मोबाइल आजकल इश्यू होता है. ठीक है, तो यहाँ कम इस्तेमाल करोगे तो वहाँ अच्छे टाइम से इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, so I am just telling you that leaders are made, and this faculty that you have here, they are going to produce you as leaders. ये तो आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आजकल जालंधर जैसे शहर में भी कितने बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ आप लोगों को तालीम मिल रही है. पुराने ज़माने में वो पट्टी पे लिखते थे, लोग लिखते थे, शाम को धोते थे, उनका एक्सपोजर ही नहीं कुछ होता था. आधे से ज़्यादा पंजाब के लोग मलेरकोटला से आगे नहीं गए थे. आजकल आप कनाडा से कम बातें नहीं करते हो, तो आपकी सोच बदल गई है. सी द फैकल्टी दैट यू हैव. ठीक है, they are going to produce the best lawyers possibly in this area. और लॉयर से मेरे को याद आया, if there are too many bad people, they always make good lawyers. सही है गलत है? अगर सोसाइटी में खराब लोग ज़्यादा हो तो उस सोसाइटी में उतने अच्छे लॉयर होते हैं. समझ नहीं आया जो? ओके, चलो. एनीवेज, नींद तो नहीं आ रही है तो खड़े हो जाओ सारे, एक बार खड़े हो जाओ और जल्दी जल्दी खड़े हो, ऐसे सुस्त की तरह नहीं. बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ. थैंक यू, प्लीज सिट डाउन. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. पेशेंस इज द की एलिमेंट ऑफ सक्सेस. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मक्खी आपके ऊपर भिन बना रही है तो ठीक है 1-1.5 साल के बाद उसको मारेंगे. दैट इज नॉट द पर्पस. ठीक है,
You know who this gentleman is? Bill Gates, Microsoft. इसकी ज़िंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव थे, लेकिन इसकी ज़िंदगी की सीख ये थी कि पेशेंस, वो क्या है, एक वो तुलसीदास जी का भी तो वो है ना दोहा, किसको पता है वो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ, कोई बता सकता है? चलो गूगल करके बताओ कोई। सो in life, to achieve something, you have to wait for the right moment, and that right moment will come when you are capable of doing that. You have to improve your education, you have to improve your confidence, most of all you have to improve your persistence and perseverance to be able to sustain hard work. और जब आप ये सब करना सीख जाओगे तो वो समय ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका सितारा बनने का। ओके, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, नीडलेस टू से मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, आपके सामने ही हैं। 3 लोग आपके सामने बैठे हैं, आपके चेयरमैन साहब यहाँ पे बैठे हैं। जो इंसान सादगी से ज़िंदगी जीता है उसके विचार ऊंचे होते हैं, और अगर आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए अगर नीचे होके बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप छोटे हो जाते। एंड देयर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, व्हाई गो फार इन आवर ओन कंट्री। महात्मा गांधी एवरीबडी नोज, जिसको दुनिया जानती है, और वो इतने सीधे हम्बल शख्स थे, और जो उन्होंने किया शायद बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, है ना। While Gucci Armani are good at your age because you are now living the peacock life. You know what's the peacock life? मोर डांस करता है ना, करता है डांस? वो क्यों डांस करता है? ओके, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इफ यू डू वॉट यू लव यू विल नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ। सही है गलत है? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो और पापा आपको आर्मी में भेज देते हैं तो आप फौज में भी अच्छा नहीं कर पाओगे, और हर जगह आप टांके लगाते रहोगे वहाँ पे, फिर है ना। और अगर आप फौजी बनना चाहते थे, आपको डॉक्टर बना दिया, तो आप मरीजों की लेफ्ट राइट कराते रहोगे, है ना, कि पहले उधर जाओ, 3 कदम दाहिने खड़े हो, बाएं खड़े हो, ये करो, तब तक वो बेहोश होकर गिर जाएगा, है ना। तो वो करो जो आपको अच्छा लगता है। अभी इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ क्योंकि आप लोग क्लियर नहीं हैं। अगर आपकी मदर आपको बोलती है कि बेटा ये करना है, तो आप बोलते हैं यार मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, मैंने सिर पीड़ हो रही है, मेरा है होमवर्क रहता है, वो रहता है, फलाना रहता है। तो मदर बोलती है चलो छठो यार, इन्हें तो करना नहीं कुछ, है ना। फिर इतनी देर में एक फ्रेंड का कॉल आता है कि वो कौन सी पिक्चर लगी है अभी, सरफिरा, सरफिरा, सरफिरा चलना है। एंड मिनट से पहले आप तैयार हो गए, गायब हो जाते हो, है ना। क्यों गायब हो जाते हो? क्योंकि आप जाना चाहते हो, है ना। और जो आप काम नहीं करना चाहते उसके लिए आप दुनिया भर के बहाने बनाते हो। गर्मी बहुत है, बाहर कौन जाएगा, अगर जान कर वापस ही आना है तो जाने का क्या फ़ायदा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसका तरीका ये है, वो करो। अगर आप सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो बनो, बट बिकम द बेस्ट सोशल इन्फ्लुएंसर, ठीक है। You want to become a TikTok star, become a TikTok star, but then be good at it, okay? उसको शिद्दत के साथ में करो, ठीक है। Next please. So this is part of the previous one only, that passion is motivation. जिस चीज़ को आप चाहते हो करना, वो अपने आप आपको मोटिवेट करेगी उसमें बढ़िया करने के लिए। अगर केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती तो कुछ और करो, ठीक है। कैन यू हेयर मी इन द एंड? ओके, नेक्स्ट प्लीज। ये मेरा लास्ट पॉइंट है, और ये एक ज़रूरी पॉइंट है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, ठीक है। धीरे धीरे सबके चेहरे पे झुर्रियाँ है, उसमें वक्त ज़ाया मत करना। और आप लोगों के लिए तो और भी प्रॉब्लम है,
क्योंकि हिंदुस्तानी अब बहुत ज़्यादा है। आपके भाई बहन जो कनाडा में रहते हैं और या दूसरे देशों में रहते हैं, उनसे पूछना, और मीलों मीलों तक लोग नहीं दिखाई देते, और यहाँ मीलों मीलों तक खाली इलाके नहीं नज़र आते, है ना। तो जहाँ खाली इलाके नहीं हैं वहाँ आपके लिए कंपटीशन ज़्यादा है। अपने माँ के नाम एक पेड़ लगाने की जो मुहिम है उसमें हम हिस्सा ले रहे हैं, और यहाँ पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब में ये जज्बा है कि किस तरह से हम अपनी धरती को, अपनी अर्थ को ग्रीन और बना सकते हैं। तो यहाँ पर आए हमारे कर्नल एमएस सिंह का जो कमांडेंट है एनसीसी जालंधर के, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उनके साथ सूबेदार जी बनवारी लाल जी का भी और उनकी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करता हूँ हमारे चेयरमैन श्री अनिल चोपड़ा जी का, जिन्होंने अपने बहुत कीमती समय से कुछ समय हमारे लिए आज निकाला, क्योंकि आज का दिन एक बहुत ही खास दिन है। और डॉक्टर सुभाष शर्मा जी का जो डायरेक्टर है सेंट सोलजर लॉ कॉलेज का, उनके ही परिश्रम से आज जो कॉलेज है हमारा सेंट सोलजर लॉ कॉलेज, ये पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। तो एक बार अपने लिए आप सेंट सोलजर लॉ कॉलेज और जो विद्यार्थी नए आए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर सेंट सोलजर लॉ कॉलेज में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो इस वक्त लॉ की शिक्षा हासिल कर रहे हैं, जिनकी संख्या इस वक्त 900 से भी ज़्यादा है, जो कि किसी भी नॉर्थ इंडिया के लॉ कॉलेज में नहीं है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो चाहे वो कॉलेजेस हो। तो आप सबके प्रति भी एक जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, और आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है किस तरीके से हम जिस कॉलेज की आन बान और शान को हम इसी तरह से बनाए रखेंगे। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं हम उनका यहाँ पर स्वागत भी करते हैं, और उन सबके पेरेंट्स को भी हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं आप सबके माध्यम से आपके पेरेंट्स को, जब आप यहाँ पर इस कॉलेज में आपने दाखिला लिया है और आपका जो फ्यूचर है और सिक्योर है, और आप सब यहाँ पर इतनी मेहनत करेंगे कि सब कुछ जितने भी जो जजेस बनना चाहते हैं वो जजेस बनेंगे, जो लॉ ऑफिसर्स बनना चाहते हैं लॉ ऑफिसर्स बनेंगे, जो खुद अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस करना चाहेंगे। आपके लिए कोई लिमिट जो नहीं है, और आज हमको कर्नल साहब ने यही एक मोटिवेशन के थ्रू बताया कि किस तरह से हम अपने आप में बदलाव लेके आ सकते हैं। बेटे, इस तरह के सेशन जो रहते हैं बहुत रेयर होते हैं, और इन सेशंस का आप जितना भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने में, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, आप उतना ही इसका फायदा लीजिएगा। जरूरी नहीं होता है कि मौसम कैसा है, मौसम बारिश वाला भी हो सकता है, गर्मी वाला भी हो सकता है, सर्दी वाला भी हो सकता है, लेकिन जब हम अपने फ्यूचर की बात करते हैं, अपने करियर की बात करते हैं, तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। और इसी सबके साथ एक बार फिर से हमारे फैकल्टी मेंबर्स का, हमारे स्टूडेंट्स का, और जहाँ भी जितने भी हमारे मेहमान आए हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले बहुत से दिनों के अंदर ये जो मुहिम हमने चलाई है एक पेड़ माँ के नाम, वो हम अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपनी कॉलोनीज के अंदर, अपने गाँव में, अपने कस्बों में, अपने शहरों में वहाँ तक पहुँचाएंगे, और हर घर को जागरूक करेंगे, ताकि हम आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं ये शायद हम अपने लिए ना करें। आपने जो सवाल होगा कि पेड़ तो 10 साल बाद आएगा, 15 साल बाद आएगा, तो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो इतना बड़े बड़े पेड़ लगाए थे, हमने अपने स्वार्थ के अंदर, अपने लालच के कारण हमने उनको काट दिया, और हम उसकी जो है वो वजह के कारण हम गर्मी को, इतनी ह्यूमिडिटी को झेल रहे हैं। नहीं तो पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती। आज टेम्परेचर जो है 45-50 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि यही टेम्परेचर मैक्सिमम 37-35 तक रहता होता था। तो हमने 15 डिग्री टेम्परेचर तक अपनी गलती के कारण ही बढ़ा दिया है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है इस टेम्परेचर को 50 से 65 तक ना पहुँचाए,
हम फिर 50 डिग्री से उसको 35 डिग्री को लेके आए। तो हमारा ये सबका प्रयास है, सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का प्रयास है और एनसीसी का प्रयास है, और आप अपने तरीके से इंडिविजुअली अपने प्रयास को जरूर करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? डेफिनेटली, एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। मुझे आप सबके ऊपर बहुत गर्व है, और एक बार फिर से आप सभी आए मेहमानों का बहुत 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 धन्यवाद। सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन मिस्टर डॉक्टर अनिल चोपड़ा जी हमारे साथ खड़े हैं, और डॉक्टर बात करते हैं कर्नल साहब की, जो कि बिल्कुल उनके पास खड़े हैं, एम.एस. सचदेवा सर। करते हैं उनसे बातचीत। आज एक पेड़ माँ के नाम उनकी एक जो स्पेशल थी भूमिका उनको उन्होंने निभाया है, तो आज उनको कैसा लगा? सबसे पहले सर से बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत। कर्नल सचदेव साहब का बहुत बहुत हमारे इंस्टीट्यूशन में आने पर स्वागत करते हैं, और जो इन्होंने मुहिम चलाई है वन कैडेट वन प्लान इज़ एक्सेलेंट मोमेंट, और जो इन्होंने अभी लेक्चर दिया है सो इंफॉर्मेटिव एंड इनकरेजिंग लेक्चर, सो आई थैंक हिम टू जॉइन अस। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया कि आपके बच्चों को हम ये बता सकें कि एक कैडेट एक पेड़ का जो अभियान नेशनल कैडेट कोर ने शुरू किया है, ये असल में हमारी जनरेशन की गलती थी कि हमने पेड़ ज़्यादा काट दिए, तो उसका नतीजा इन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बट दे आर अलाइव टू द प्रॉब्लम, एंड आई एम श्योर इफ़ ईच चाइल्ड टेक्स केयर ऑफ वन प्लांट ईच, सो things will change and our earth will become as beautiful as it was before. Absolutely. I also thank Dr. Anil Chopra ji and the entire faculty and including our ANO for giving me this opportunity to be here today. It's really an honor to interact with the cadets and meet each one of you. थैंक यू। जय हिंद। हमारे साथ खड़े हैं मैडम नेहा शीना जी, जो कि आज इस मुहिम में भागीदारी हैं, और बहुत सारी बातों के साथ उनके साथ पूछेंगे कि क्या ये मुहिम बिल्कुल उनकी तरफ से है या फिर सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से है। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये जो आज का जो हमने ड्राइव की है वन कैडेट वन ट्री, ये एक्चुअली हमारे बटालियन की तरफ से आया था, 2 पंजाब गर्ल्स बटालियन, एंड उसके बाद मैंने ये जो है अपने मैनेजमेंट और कॉलेज में डायरेक्टर सर
सर के साथ डिस्कस किया, तो वी कंडक्ट दिस इवेंट टुडे एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट वी हैड टुडे। एंड जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो हमारे कर्नल CEO साहब कर्नल MS सचदेव थे। एंड उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि आज अगर हम अपनी जो अर्थ है ना उसको बचाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक बच्चा जो है एक पौधा लगाए। तो अंडर द कैंपेन 1 कैडेट 1 ट्री, तो आज हमारे कैडेट्स ने जो है पौधे लगाए हैं और कोशिश करेंगे और कि इसको मेंटेन हम लोग रख सकें और एक ब्राइट फ्यूचर हम लोग अपने आने वाली जनरेशन को दे सकें। जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे लिए छोड़े थे, हमारे वंशजों ने हमारे लिए पेड़ पौधे छोड़े थे, लेकिन हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या देके जाएंगे? ये गर्मी ऐसे तो हो नहीं सकता, तो हमें भी चाहिए कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि कहते हैं एक रुख और 100 सुख। सुख लेना है तो बहुत सारे रुख लगाने पड़ेंगे। थैंक यू। सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मनहर अरोड़ा हमारे साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहते हैं? आज खास एक भूमिका चलाई थी जिसको हम मुहिम कहते हैं, एक पेड़ माँ के नाम। सो उसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। क्या कहना चाहते हैं सर? बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक शुरुआत है हमारे चेयरमैन श्री अनिल चोपड़ा जी की तरफ से और हमारे वाइस चेयरपर्सन मैडम श्रीमती संगीता चोपड़ा जी की तरफ से, कि जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो एक मुहिम चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, उसको हमने सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सारे ही कॉलेजेस और स्कूल्स में उसको दिया है, उसको शुरुआत करी है उसकी। और इस मुहिम के अंदर हम तकरीबन 5000 से ज़्यादा पेड़ जो हैं अपने जो स्टूडेंट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अपने कैंपस के अंदर भी वो लगवाएंगे। और उसी सीरीज़ में आज जो NCC की तरफ से जो हमारे कमांडेंट हैं NCC के जलंधर यूनिट के कर्नल MS सचदेव, वो यहाँ पर आए थे क्योंकि उनकी भी एक शुरुआत थी। उन्होंने एक पेड़ एक कैडेट के नाम से उन्होंने शुरुआत किया और जिसकी पहली बार ही हमारे यहाँ पे NCC जो यहाँ पे लॉ कॉलेज के अंदर है, उन सभी विद्यार्थियों ने अपना एक एक पेड़ जो है लगवाया। और उन्होंने ये भी प्रण लिया कि जो पेड़ हमने लगाया है उसकी हम देखभाल भी करेंगे और जब तक वो कॉलेज में रहते हैं उस कॉलेज के अंदर रोज़ आकर उसको पानी देना या जो भी उसकी देखभाल करनी है वो सब देखभाल उनकी करेंगे। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारी जनरेशन ने इतने पेड़ काटे हैं और उन पेड़ों की भरपाई जो है हम इसी मुहिम के थ्रू ज़रूर करें। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन डॉक्टर अनिल चोपड़ा जी की आज बहुत ही बढ़िया एक शुरुआत थी जो कि उन्होंने निभाई है कि एक पेड़ माँ के नाम। उनका कहना ये है कि सभी बच्चे इसमें भागीदार बने और इस मुहिम को हमेशा आगे बढ़ाएं। हर जगह पेड़ ज़रूर होने चाहिए क्योंकि आज के समय में पेड़ बहुत कंपलसरी है। जैसे कि आप देखते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी को घटाने के लिए आप पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जब आपके घर में कोई खुशी हो आप पेड़ लगाएं, जब आपका बर्थडे हो तब भी आप पेड़ लगाएं। सो पेड़ लगाने के लिए सबको प्रेरित करें। सो आज सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज में इस मुहिम को बढ़ावा दिया गया और सब स्टूडेंट ने इसमें हिस्सा भी लिया। सेंट सोल्जर टाइम से कोमल शर्मा, कैमरामैन अनुराग के साथ।